Hello students, welcome back to our Kshitij batch for IIT JAM 2023. This is your educator Vishali and now we are going to continue with the microbiology series, and this is the lecture second of this series, that is microbial metabolism and microbial growth. So different topics which we are going to cover in this lecture are microbial metabolism, then microbial growth, and finally how to control the microbes, that is how you need to control different agents used to control your microbial growth. Starting with, firstly, what is metabolism? So metabolism is basically how the complex substances are broken down into simple ones. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल वंस में कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, या फिर सिंपल वन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैसे बना रहे हैं. दैट इज योर मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स योर कैटाबॉलिज्म, and anabolism. That is catabolism, how the complex substances are broken down into simple ones, and anabolism is how complex are synthesized from your simple ones. Totally opposite of each other, right? So जब हम microbial metabolism में देखते हैं तो यूकैरियोट्स के लिए एनर्जी सोर्स क्या है? यूकैरियोट्स के केस में एनर्जी कहाँ से आती है? दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, एंड इन केस ऑफ योर प्रोकैरियोट्स can derive energy from organic as well as inorganic matter both. राइट नाउ अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी सेल के अंदर हो रही हैं, every single reaction that is occurring in your cell is a part of metabolism, right? Statement says every chemical reaction occurring in cell is part of metabolism. Every single reaction that is occurring inside a cell is a part of metabolism. तो इसी में अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की, तो इट कैन बी अंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक. दैट इज एंडरगोनिक मीन्स नीडिंग एनर्जी. जो रिएक्शन जिसको एनर्जी चाहिए कंप्लीट होने के लिए, दैट इज एंडरगोनिक, नीड्स एनर्जी. एक्सर्गोनिक इज अ रिएक्शन दैट अल्टीमेटली रिलीजेस एनर्जी, राइट? So we have two different types of reaction: endergonic, that is needing energy, and exergonic, that is releasing energy. Now if we talk about metabolism, it also has two components: catabolism and anabolism. तो catabolism में क्या होता है? catabolism में actually the energy is released. कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होके, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होके वी रिलीज द एनर्जी. सो योर कैटाबॉलिज्म इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन while your anabolism is endergonic reaction. Synthesis requires the supply of energy while breakdown releases energy. And rightly, जो energy
कैटाबॉलिज्म से रिलीज होती है, जो एनर्जी कैटाबॉलिज्म से रिलीज होती है वो अल्टीमेटली एनाबॉलिज्म में यूटिलाइज होती है। तो अगर कंक्लूड करूं, मैंने ये बोला कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है जो बाद में एनाबॉलिज्म में यूटिलाइज होती है। तो एक्चुअली सेल कर क्या रही है? इट इज बैलेंसिंग योर कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. Your cell is actually balancing your catabolism and anabolism. So, moving to next part. Now we have different types of microbes, right? So हम दो classifications देखेंगे यहाँ पे. First is classification on the basis of carbon source. Classification on the basis of carbon source, that is किस सोर्स से ऑर्गेनिज्म कार्बन ले रहा है. देन इट कुड बी ऑटोट्रॉफ और इट कुड बी heterotroph. Your organisms on the basis of carbon source can be of two different types, autotroph and heterotrophs. What do autotrophs do? Autotrophs use inorganic CO2 as carbon. जो आपके ऑटोट्रॉफ हैं वो CO2 को एज अ कार्बन सोर्स करते हैं. वहीं पे जो हेटरोट्रॉफ्स हैं दे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज कार्बन. If we talk about example, very clear, autotrophs is plants and heterotrophs is we as a. So on the basis of carbon source we have two different types of organisms, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs which use inorganic carbon dioxide as a carbon source, example plants. Heterotrophs which use organic compounds as carbon source, example. Next classification that we have to see is on the basis of energy source. Classification basis of energy source. Classification of energy source. Here also we have two different types of organisms, that is phototrophs and chemotrophs. उससे पहले आपको एक पॉइंट याद करना है, जितनी भी एनर्जी है, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी डिराइव होती है दैट इज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनर्जी इज डिराइव्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो दैट बिकम्स द सोर्स ऑफ योर एनर्जी. नाउ अब इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? इफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर comes from light, then it is your phototroph. And if the same energy from electron transfer comes from breaking of chemical bonds, then it is chemotrophs. Energy for
electron transfer comes from breaking of chemical bonds. तो ऑन द बेसिस, सबसे पहले पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि कोई भी एनर्जी है दैट इज डिराइव्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एंड अब उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हम कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. फोटोट्रॉफ, दे डिराइव दिस एनर्जी फ्रॉम लाइट, एंड कीमोट्रॉफ, दे डिराइव द एनर्जी फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ केमिकल bonds. Now, so here we have your different types of organisms. On the basis of energy source we have firstly chemotrophs and your phototrophs. Now further हमने next divide किया है chemotrophs on the basis of carbon source can be chemoheterotrophs or chemoautotrophs. Finally phototrophs can be photoheterotrophs or photoautotrophs. That is, you are combining two different classifications, the same one. Correct? Now, starting with microbial metabolism, that is how firstly we will proceed with catabolism. We will start with catabolism. The catabolism also, we will first start with carbohydrate catabolism. Firstly, beginning with carbohydrate catabolism. Okay. सबसे पहला स्टेप कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट first step of carbohydrate catabolism, common to all, whether you talk about your eukarya, bacteria or archaea. All the three have a common pathway to start with carbohydrate catabolism, and that pathway is your glycolysis. First pathway of carbohydrate catabolism is glycolysis. और अगर हम देखें glycolysis 10 step process, no need of oxygen, occurs in cytoplasm of prokaryotes as well as eukaryotes. दोनों में ही cytoplasm. Now 10 step process, no need of O2, occurs in cytoplasm of prokaryotes too. करते क्या है, 6 कार्बन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराते हैं 3 कार्बन पायरुवेट. So glucose is breakdown of your 6 carbon glucose into 2 molecules of your 3 carbon pyruvate, right? Now, और हम बात करें first 5 steps. First 5 steps are your preparatory steps. First 5 steps are preparatory phase, and next 5 steps are your payoff phase. और अगर बात करें फर्स्ट 5 स्टेप्स में होता क्या है, we convert glucose to glyceraldehyde 3-phosphate
and in your second part, that is payoff, glyceraldehyde is converted to pyruvate. राइट, फर्स्ट 5 स्टेप्स में क्या कर रहे हैं हम, ग्लूकोज को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, एंड सेकेंड पार्ट दैट इज पे ऑफ में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को पायरुवेट में करते हैं. Preparatory itself uses your ATP. Here we are going to use 2 ATP, and here we are going to get 4 ATP and 2 NADH. कंबाइन करें तो ओवरऑल नेट गेन कितना होता है, नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज we have net gain of glycolysis as 2 ATP and 2 NADH. This is the net gain of glycolysis. दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या देखा. फर्स्टली ग्लाइकोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज टू 2 molecules of 3 carbon pyruvate. 10 step process, no need of oxygen, occurs in cytoplasm of prokaryotes as well as eukaryotes. अगर बात करें फर्स्ट 5 स्टेप्स जो हैं वो प्रिपरेटरी फेज हैं, दैट इज हम ग्लूकोज को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ATP. देन इन द नेक्स्ट 5 स्टेप दैट इज पे ऑफ, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में विद द रिलीज ऑफ 4 ATP एंड 2 NADH. सिंस 4 ATP बन रहे थे उनमें से 2 यूटिलाइज हो रहे हैं, नेट इन कंक्लूजन है 2 ATP 2 NADH. तो दिस मार्क्स योर प्रिपरेटरी स्टेज. क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate. Coming to, we have dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. Now your dihydroxyacetone phosphate gets converted to glyceraldehyde 3 phosphate. This is showing your 5 steps, that is preparatory phase, and this shows your payoff phase, that is जब हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे 1,3-डाइफॉस्फोरिक एसिड, देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, phosphoenol pyruvate, and finally pyruvic acid. Here you have your ATP. Clear? So here you have your 2 ATPs, in total 4, and here you have your 2 NAD. This is your first step of carbohydrate metabolism, that is your glycolysis. Now next step अगर हम बात करें, we have got our pyruvate. Next step is a transition or bridge reaction. Next step is a transition or you say bridge reaction. And what you do in this reaction, you convert your pyruvate to acetyl coenzyme. Your pyruvate is converted to acetyl coenzyme A by कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन. Here you have a decarboxylation reaction, and here the complex, that is we use enzyme complex pyruvate dehydrogenase. नेक्स्ट स्टेप आपका पायरुवेट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज अ ट्रांजिशन और ब्रिज रिएक्शन, जहाँ पे हम पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में. दिस इज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड है एंड योर पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, एंड द एंजाइम कॉम्प्लेक्स वी आर यूजिंग इज पायरुवेट dehydrogenase, and your acetyl coenzyme A is ready to enter your Krebs cycle, that is the next step of your carbohydrate metabolism. Next step is we are having our Krebs cycle.
Krebs cycle, acid cycle. Now, अगर बात करें कहाँ पर होती है, तो प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ होती है? प्रोकैरियोट्स में होती है साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स, and in case of eukaryotes it's in mitochondrial that we are doing. पहले इसमें आपको याद रखना है, it is a, you know, it is a loop of reaction. loop of reaction क्यों बोला? जहां से, कहां से स्टार्ट किया? एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट किया था, एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट किया था, एंड फाइनली कम्स बैक टू एसिटाइल कोएंजाइम ए ओनली, राइट? तो करते क्या है? वी फॉर्म अ सिट्रिक एसिड. हम एसिटाइल कोएंजाइम में एक 4 कार्बन का इंटरमीडिएट ऐड करते हैं. 4 कार्बन का इंटरमीडिएट ऐड करते हैं, दैट फॉर्म्स योर सिट्रिक एसिड, दैट इज 6 कार्बन. फिर उसके बाद वी स्टार्ट रीजनरेटिंग आवर एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड इसी प्रोसेस में वी गेट TNADH, 1 GTP, 1 FA. This is your net gain of Krebs cycle, that is 3 NADH, 1 GTP, 1 FAH2. Now, what we do? It occurs in cytoplasm in prokaryotes, mitochondrial matrix in eukaryotes. It is a loop of reaction. जहाँ से start हुआ है वहाँ पे वापस आता है. But करते क्या है? सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में 4 कार्बन इंटरमीडिएट ऐड करते हैं, that forms your citric acid. Now, इस citric acid को वापस एसिटाइल कोएंजाइम में जनरेट करने के लिए we undergo a decarboxylation reactions. इसमें हमारे पास 3 NADH, 1 GTP और 1 FADH2 synthesize होते हैं. So, this is our Krebs cycle. Starting with acetyl coenzyme A, we have citric acid, isocitric acid, alpha ketoglutaric acid, succinyl coenzyme में succinic acid, fumaric acid, malic acid, oxaloacidic, coming back to our acetyl coenzyme A. Series of reactions working together to form again. This is about Krebs cycle. Now, what we have do, अभी तो आपने ATP सिंथेसिस देखा, ग्लाइकोलिसिस में देखा, ठीक है? तो यहाँ पे ATP सिंथेसिस कैसे होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. दैट इज आप डायरेक्टली ATP पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? आप डायरेक्टली ATP पे ट्रांसफर कर देते हो इनऑर्गेनिक फॉर्म, दैट फॉर्म्स योर. नाउ अब हम जो बात करने वाले हैं दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? दैट इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन. करने के वाले हो सेलुलर रेस्पिरेशन में आप क्या करोगे? सेलुलर रेस्पिरेशन में आप इलेक्ट्रॉन्स लोगे NADH और FADH2 से. आप लोगे इनसे इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रांसफर करोगे,
इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर। क्या करोगे, आप एक्सट्रैक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन्स को NADH और FADH2 और उनको सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से पास करते हुए ट्रांसफर करोगे इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर, राइट। अगर ये एक्सेप्टर O2 है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 है, देन इट इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल inorganic molecule, that is example nitrate, then is your, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम anaerobic respiration। anaerobic and अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका पाइरुवेट है, इसे बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में हमें NADH और FADH2 सिंथेसाइज करें। नाउ अब हम इन्हें क्या करने वाले हैं, एक्चुअली इनको ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम करते क्या है, हम इनसे इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पास ऑन करेंगे। नाउ अगर ये इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका O2 है, देन इट इज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये इनऑर्गेनिक है, दैट इज, तो कीप इट हेयर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इनऑर्गेनिक है, देन इट इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड इफ इट इज पायरुवेट इट इज फर्मेंटेशन, राइट। होता क्या है, नाउ सी व्हाट हैपेंस, दिस इज योर सेल, वी विल टॉक अबाउट इन ए सिंपल वे। होता क्या है, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मूव हो रहा है, देन इट विल बी लूजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा ना, क्लियर। ये एनर्जी हम यूज करते हैं हाइड्रोजन ट्रांसफर। कौन से हाइड्रोजन, प्रोकैरियोट्स में हाइड्रोजन कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म से पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। नाउ सिंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम इसको यूज करते हैं हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने। प्रोकैरियोट्स के केस में कैसा ट्रांसफर है, साइटोप्लाज्म से पेरिप्लाज्मिक स्पेस में जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से सुन लो एक बार दोबारा। सबसे पहले हमारे पास NADH और FADH2, हमने इनसे इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए एंड वी स्टार्टेड ट्रांसफरिंग दीज इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं देन दे आर रिलीजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रांसफर।
हाइड्रोजन ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म से पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन। नाउ अब क्या हुआ, अगर ट्रांसफर हुआ पेरिप्लाज्मिक स्पेस और प्रोकैरियोट्स में पेरिप्लाज्मिक स्पेस और यूकैरियोट्स में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा, ग्रेडियंट डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में, तो यहाँ पे डेवलप होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। डेवलप होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रो क्यों है? क्योंकि चार्ज का डिफरेंस है, हाइड्रोजन आयंस जो है वो चार्ज है, तो अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तो चार्ज का भी डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रो इसलिए क्योंकि चार्ज का डिफरेंस है, चार्ज का ग्रेडियंट है। केमिकल इसलिए क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस, केमिकल इसलिए क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। सो वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जिसको आपको प्रोटोन मोटिव फोर्स भी कहते हैं, से आप प्रोटोन मोटिव फोर्स भी कहते हैं। नाउ हर चीज अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करती है, करेक्ट? हर चीज अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करती है। सिमिलरली आपके हाइड्रोजन भी मूव करना स्टार्ट होंगे, लेकिन ये मूव किसके थ्रू करते हैं? एक चैनल के थ्रू, जिसको आप बोलते हो एटीपी सिंथेस। एंड इस मूवमेंट को हम बोलते हैं केमिओस्मोसिस। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हाइड्रोजन को ट्रांसफर किया, तो हमारा इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट बना एंड एवरीथिंग मूव्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेडियंट। इसलिए हमारे हाइड्रोजन आयंस भी वापस आना चाहेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस से साइटोप्लाज्म में, और सेकेंडली यूकैरियोट्स में कहाँ आएंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के उससे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बट ये मूवमेंट किसके थ्रू होती है? एटीपी सिंथेस के थ्रू। जब ये मूवमेंट होती है हाइड्रोजन की, योर एटीपी सिंथेस रोटेट्स, your ATP synthase rotates and forms your ATP. This is your cellular respiration. That is, ये आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से यू कैन सी योर हाइड्रोजन आयंस आर मूविंग, करेक्ट? दैट इज क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को कंप्लीट करने के लिए एटीपी सिंथेस के थ्रू हाइड्रोजन आयंस वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेस रोटेट्स एंड प्रोड्यूसेस योर एटीपी। दैट इज हाउ from NADH and FADH2 by electron transfer we generate the ATP. Now from one NADH we have 3 ATP, and from one FADH2 we have your 2 ATP. Now we have seen aerobic और anaerobic. aerobic में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ पे जाके एंड होता है? जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज ऑक्सीजन। जब एंडिंग करनी है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है एंड दैट फॉर्म्स योर H2O। एंड इन केस ऑफ योर एनारोबिक हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपके नाइट्रेट। डी नाइट्रीफायर्स आर फॉलोइंग योर एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ फिर हमने देखा था फर्मेंटेशन। दैट वाज फर्मेंटेशन। हमने क्या देखा था? फर्मेंटेशन इज जब आपका पाइरुवेट जो है एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज योर पाइरुवेट। एंड नाउ हम फर्मेंटेशन का बहुत यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ। हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हम फर्मेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल योर हैव योर स्ट्रिप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलाई एंड बैसिलस। इनका
जो fermentation end product है that is lactic acid. Then we have Saccharomyces, their end product is ethanol and CO2. इनसे हम alcohol का synthesis कराते हैं. Propionobacterium, we have propanoic acid, acetic acid, CO2 and H2O. Clostridium, butyric acid. Escherichia, salmonella, ethanol, lactic acid, Enterobacter, ethanol, lactic acid, formic acid. And we use these fermentation products for our usefulness, उन products का synthesis कराने के लिए जो हमारे लिए useful. Whether it's your synthesis of curd बनाने के लिए we are using this fermentation only. Whether we are making alcohol, we are using fermentation only. In daily life we are using fermentation very large scale. So this is a summarization of your carbohydrate catabolism, right? सबसे पहले आपके पास ग्लाइकोलिसिस है जिससे आपका बनेगा पायरुविक एसिड. देन आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम A, it undergoes your Krebs cycle and you need going through the ETC. आपके पास finally और ATP, correct? एंड देन पायरुविक एसिड के डेरिवेटिव्स जो हैं वो डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स बना. इसके साथ नेक्स्ट पार्ट दैट इज लिपिड कैटाबॉलिज्म. लिपिड कैटाबॉलिज्म लिपिड कैटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास दो लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स and next we have your phospholipid. We have triglycerides and phospholipids. सबसे पहला स्टेप होगा, ट्राइग्लिसराइड्स पे एक्ट करता है लाइपेज. ट्राइग्लिसराइड्स पर एक्ट करता है लाइपेज एंड इट फॉर्म्स ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. इट फॉर्म्स ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. करते क्या हैं, इस ग्लिसरॉल को कन्वर्ट करते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में. देन इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लिस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. And finally this glycerol aldehyde 3 phosphate enters your glyco. तो आपने देखा your lipid catabolism converging at your carbohydrate catabolism. सबसे पहले हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड्स पे लाइपेज एक्ट करेगा and it breaks it down into and fatty acids. Glycerol is converted to glycerol 3 phosphate, then it is converted to glyc aldehyde 3 phosphate that enters your glycolysis. fatty acids का क्या करते हैं, fatty acids का करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन करते हुए फैटी एसिड के टर्मिनल से दो कार्बन हटाते जाते हैं एंड वी फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम. बीटा ऑक्सीडेशन से फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A एंड दैट फाइनली एंटर्स योर Krebs cycle. That finally enters your Krebs cycle. Again this converging at your carbohydrate catabolism. Similarly phospholipids पे एक्ट करता है phospholipase. यहाँ पर भी आपके यही बनते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. इफ आपके पास फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आ गए, दे following the same pathway of glycerol 3 phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate entering into glycolysis and fatty acids also going through beta oxidation and entering the Krebs cycle. So this is how your lipid catabolism. Now next if we talk about
कैटाबॉलिज्म देख लिया, एनाबॉलिज्म। अगर एनाबॉलिज्म की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म किसके थ्रू होता है? कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, दैट इज थ्रू द फोटोसिंथेसिस, दैट इज थ्रू फोटोसिंथेसिस। अगर प्रोकैरियोट्स में बात करूं, प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? इन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। And in case of your eukaryotes, that occurs in, correct? So your carbohydrate anabolism occurs by the process. In case of prokaryotes, it occurs in your plasma membrane. In case of eukaryotes, in chloride. फोटोसिंथेसिस को डिवाइड करें तो we have two different phases: light dependent reactions, and your light independent reactions. लाइट इंडिपेंडेंट, एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स वी गेट फ्रॉम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बाय पिगमेंट्स। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो अपने आप को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देते हैं, दैट इज फोटो सिस्टम में आ जाते हैं एंड दे अब्सॉर्ब द लाइट, एंड दैट लाइट इज यूज्ड फॉर व्हाट वी डू फॉर दैट लाइट? वी यूज दैट लाइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। We use that light for electron transfer and we synthesize energy. Correct? That is used finally in light independent reaction, जहाँ पे आपका होता है fixation of CO2 to form sugars. That is by which cycle we follow here? That is your Calvin cycle. So this is carbohydrate anabolism by the process of your photosynthesis. Now with this coming to end of metabolism, अब हम आएंगे next part of the lecture, that is microbial growth. We have to increase the population of our microbes. We can increase the cell mass and cell, both are part of your microbial growth, correct? So if we talk about microbial growth, तो उसके अलग अलग phases हैं: lag, log, exponential and finally your death. चार phases हैं: lag, log, exponential and death. lag phase क्या होता है? क्या होता है इस फेज में? दैट इज बैक्टीरियल सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ, या फिर आप सिंप्लीफाइड वे में क्या बोलते हैं हमेशा? अडैप्ट्स इटसेल्फ टू, bacterial cell adapts itself to the
environment that is nutrient पे dependent होती है, nutrient के according अपने आप को adapt करती है. Log phase that is exponential growth. There is a increase, immediate increase and high amount of increase in the bacterial cell number. Exponential growth, it occurs in the form of geometric growth. There you see your metric. Coming to, sorry, here we have your stationary. This is your stationary. स्टेशनरी फेज क्या होता है? स्टेशनरी फेज में योर इंक्रीज इक्वल्स टू डिक्रीज. जितनी सेल्स नई बन रही हैं उतनी ही पुरानी सेल्स डाई आउट कर रही हैं, इसलिए जो आपकी फेज है वो स्टेशनरी है. दैट इज कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है. डिक्लाइन दैट इज डेथ फेज. नाउ द सेल नंबर इज कंटिन्यूसली डिक्रीज. Here you have your 4 phases. Lag phase, intense activity preparing for population growth but no increase in population. Right? But इसमें एक चीज याद रखनी है. फर्स्ट जो आपका फेज है लैग फेज में आपके जो सेल नंबर है वो इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन सेल मास इंक्रीज. सेल नंबर इंक्रीज नहीं करता लेकिन सेल मास इंक्रीज करता है आपका लैग फेज. नेक्स्ट इज योर लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज दैट इज पॉपुलेशन. स्टेशनरी फेज पीरियड ऑफ इक्विलिब्रियम इंक्रीज एंड डिक्रीज. फाइनली डेथ पॉपुलेशन इज डिक्रीज logarithm. These are your 4 phases of microbial growth. Next that is control of microbial growth. कैसे माइक्रोब्स को कंट्रोल. अगर हमें माइक्रोब्स को कंट्रोल करना है तो हम उन्हें या तो किल करते हैं या हम उन्हें इनहिबिट करते हैं. या तो हम उन्हें किल करते हैं या हम उन्हें इनहिबिट करते हैं. अगर हमें किल करना होता है तो हम यूज करते हैं साइडल एजेंट्स. अगर हमें उन्हें इनहिबिट करना होता है तो हम यूज करते हैं स्टैटिक एजेंट. दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के. या तो आप उनको माइक्रोब्स को किल करोगे दैट इज यूज साइडल एजेंट्स, या फिर आप इनहिबिट करते हो तब आप यूज करते हो स्टैटिक एजेंट्स. नाउ इसके साथ आपको कुछ टर्म्स देखने हैं. फर्स्ट टर्म इज योर डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन में आप माइक्रोब्स को किल ही करते हो, बट डिसइंफेक्टेंट को अप्लाई कहाँ किया जाता है? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर, दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स. करेक्ट. डिसइंफेक्शन में आप किल ही करोगे लेकिन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर यूज करो. नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन में क्या करना है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाइबल ऑर्गेनिज्म. complete removal of viable organism including endospores. जितने भी वहां पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एंडोस्पोर्स भी प्रेजेंट है, उन सबको भी रिमूव करते हैं, दैट इज स्टेरिलाइजेशन. तो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन के अलग टेक्निक्स हैं. फ्लेमिंग,
ऑटोक्लेविंग या फिर सिंडालाइजेशन। सिंडालाइजेशन में क्या करते हैं, उस जो आपका हीट सेंसिटिव कल्चर मीडिया होता है उसमें हम ये यूज करते हैं। हम 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज पर, 3 कॉन्टिन्यूस डेज पर 30 to 45 मिनट तक आपके जो भी कल्चर है उसको हीट करते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, हर एक दिन पे 30 से 45 मिनट तक उसको हीट करते हैं ताकि जो स्पोर्स हैं दैट कुड कंप्लीटली वाइप आउट, सब कुछ डिग्रेड हो जाए। एंड नेक्स्ट इज योर एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में आप या तो किल करोगे या इनहिबिट करोगे। एंड ये आप यूज करते हो लिविंग टिश्यूज। जैसे आप आयोडीन सोल्यूशन करते हो दैट इज योर एंटीसेप्टिक। तो डिफरेंट टर्म्स है। डिसइंफेक्शन दैट इज फॉर योर इनएमिनेट नॉन लिविंग थिंग। स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट रिमूवल द एंडोस्पोर्स। एंटीसेप्टिक दैट इज अप्लाइड ऑन योर लिविंग टिश्यू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एजेंट्स, अगर हम एजेंट्स की बात करें, क्या क्या एजेंट्स हम यूज करते हैं माइक्रोबियल कंट्रोल करने के लिए। वी हैव योर फिजिकल एजेंट्स एंड केमिकल। फिजिकल एजेंट एंड केमिकल। फिजिकल एजेंट में हमारे पास है हीट, रेडिएशंस एंड केमिकल्स में हम यूज करते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, एंटीबायोटिक्स, हेलोजेंस और heavy। So if we talk about different agents for microbial, that could be physical or chemical. Physical में आप यूज कर सकते हैं heat and radiations, chemical में alcohol, halogens, metals, aldehyde, antibiotics. Heat में भी you can use dry heat or moist heat. So here we have firstly वो terms जो हमने देखे, sterilization, disinfection, antiseptics, these are your different terms. Now here you have your different agents. Moist heat, moist heat कब कब यूज करेंगे, जब हम बॉइलिंग कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं। और क्या प्रोसेस है, क्या बेसिकली मैकेनिज्म है, दैट इज प्रोटीन डीनेचुरेशन। प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, दैट इज व्हाई माइक्रोब इज किल्ड। नाउ पास्चराइजेशन, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग योर प्रोटीन डी। ड्राई हीट में आप डायरेक्ट फ्यूमिंग करेंगे, इंसिनरेशन करेंगे, हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन करेंगे। इसका मेन क्या है, यू बेसिकली बर्निंग इट टू एशेस, पूरा कंप्लीटली हीट कर दो, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दो। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन इज बेसिकली अ फिजिकल मेथड ओनली। फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो फिजिकल मेथड। आप पोर से थ्रू अ पर्टिकुलर साइज ऑफ पोर्स आपके माइक्रोब्स को पास करते हैं, माइक्रोब्स रह जाते हैं एंड योर सोल्यूशन गेट सेपरेट, जो आप जनरल लेबोरेटरी टेक्निक्स। नेक्स्ट पार्ट इज फिल्ट्रेशन, देन यू हैव रेफ्रिजरेशन, डीप फ्रीजिंग एंड लायोफिलाइजेशन। आप क्या कर रहे हो, आप उनको इनहिबिट कर रहे हो, कुछ टाइम के उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप करके रखने वाले। हाई प्रेशर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का। डेसिकेशन, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेज योर प्लाज्मोलाइसिस एंड दैट बेसिकली लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ योर सेल्स। रेडिएशन, आयनाइजिंग, आयनाइजिंग रेडिएशंस है तो आयंस प्रोड्यूस करेगी। और नॉन आयनाइजिंग दैट इज योर अल्ट्रावायलेट, दैट बेसिकली डैमेज योर न्यूक्लियर DNA. देन
chemical, phenol, phenolics, biophenols, you are disrupting your plasma membrane enzymes. This is basically how your agent work. Bigonides, disruption of plasma membrane. हेलोजेंस, आयोडीन क्या करते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. हेलोजेंस में आपके पास क्लोरीन और आयोडीन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं टू इनहिबिट द ग्रोथ. अल्कोहल, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड लिपिड डिसोल्यूशन. हेवी मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, डीनेचुरेशन एंजाइम्स एंड एसेंशियल एंजाइम्स. Surface active agents, soaps, and you are basically killing the microbes. Chemical, food preservation, organic and nitrogen. So this is how. Now firstly आपको पता होना चाहिए कौन सा एजेंट है. सेकेंडली आपको पता होना चाहिए क्या मोड ऑफ एक्शन. So this is your aldehydes, that is protein denaturation, chemical sterilization, ethylene oxide and other gases, plasma sterilization, peroxisomes and other forms of oxygen. Now this was all about the theory part of this lecture. Now we will see two questions of this. How many ATP molecules are generated in complete biological oxidation of one molecule of glucose? Firstly before हम करें एक देखेंगे हम. सबसे पहले आपके पास है एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन and fermentation. Now here you have your glycolysis, Krebs cycle and your होता क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके जो ग्लाइकोलिसिस है उससे आपको बनते हैं 2 ATP. क्रैब साइकिल से भी आपको मिलते हैं 2 ATP, लेकिन ETC से आपको मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 34 ATP. तो नेट जो होता है वो 38 ATP का गेन. एक ग्लूकोज अगर एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है देन इट विल फॉर्म 38 ATP. वाइल एनारोबिक के केस में 2 ATP बनते हैं, यहाँ पे भी 2 ATP बनते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 34 ATP बन सकते हैं. दैट डिपेंड्स 5 to 34. तो नेट गेन 5 to 36 ATP. एंड इन केस ऑफ योर फर्मेंटेशन सिर्फ 2 ATP बनते हैं, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं है, तो नेट इज 2. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बनते हैं फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. एनारोबिक में 5 to 36 ATP बनते हैं. फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP बनते हैं. तो द क्वेश्चन सेज इटसेल्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट इज योर 38. नेक्स्ट इज इन एस्टेब्लिशिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर chemoosmotic ATP generated by aerobic respiration, द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में लास्ट फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, दैट इज योर. So this is all about this lecture. I hope I was able to make you understand this concept. Thank you very much.